میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں روزہ کا لفظ بابل کی اسیری سے پہلے نہیں آتا۔ بائبل مقدس میں روزہ کے لیے پرانے عہد نامہ میں بابل کی اسیری سے پہلے بنی اسرائیل کے اسیر ہونے سے پہلے جو لفظ تھا وہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ عبرانی زبان میں روزہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صوم، اور صوم کا مطلب ہے توبہ اور خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اسی طرح یونانی زبان میں روزے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے نیسٹیا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ روحانی مقاصد کے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اسی طرح روزہ کے لیے ایک فارسی لفظ بھی ہے جو دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، روز آ، یعنی روز کا مطلب ہوتا ہے دن اور آ کا مطلب ہوتا ہے نا دکھ، یا کہہ سکتے ہیں کہ فاقہ کا دن۔ بنی اسرائیل کو خدا نے روزہ دیا کہ وہ سال میں پہلے کیا کرے، ایک روزہ رکھے۔ اسیری سے پہلے خدا نے صرف ایک روزہ بنی اسرائیل کو دیا کہ وہ رکھے۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی جب ہم پڑھتے ہیں 26ویں آیت تو لکھا ہے، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جان کو دکھ دینا اور خدا ان کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ یوم کفارہ کے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس مجمع میں تم نے جمع ہونا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے؟ آتشین قربانی خدا کے حضور گزرانی ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ تو اسیری کے بعد ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اور 4 روزے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو دیے۔ جب ہم زکریا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کے لیے عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ سو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے پہلے ایک روزہ دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یوم کفارہ کے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، تم نے خدا کے حضور کفارہ کے لیے آتشین قربانی گزرانی ہے، اور اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو خدا نے اور 4 روزے دیے۔ وہ کس لیے دیے؟ کہ یہ تمہارے لیے خوشی اور خرمی کا دن ہو۔ کون کون سے مہینے؟ 5ویں مہینے میں، 7ویں مہینے میں، 10ویں مہینے میں اور چوتھے مہینے میں۔ یعنی ٹوٹل کتنے روزے ہو گئے؟ 5۔ ایک پہلے تھا، 4 یہ تھے، کل ملا کے ہو گئے 5۔ سو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزہ جو ہے روحانی زندگی کا حصہ ہے۔ خدا کے حضور میں توبہ کے لیے، خدا کی حضوری، خدا کی رفاقت کے لیے، خدا کی قربت کی تلاش میں اور خدا کی رہنمائی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ یہ اجتماعی بھی ہے اور شخصی بھی، یعنی انبیاء نے روزے رکھے، یہ انفرادی بھی تھے اور اجتماعی بھی۔ انفرادی کی مثال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس بزرگ موسیٰ نے، جب ہم خدا ان کے کلام اقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 34واں باب 28ویں آیت پڑھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ جب پہاڑ پر گئے تھے تو انہوں نے ایک ہی روزہ رکھا، 40 دن کا روزہ۔ کتنے دن کا؟ 40 دن کا روزہ رکھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ مقدس ایلیا جب ہورب کے پہاڑ
जाते हैं जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं सलातीन की पहली किताब उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत है। इसी तरह हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक ही रोजा रखा, एक ही रोजा 40 दिन का। सो हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जब पढ़ते हैं मुक़द्दस दानियल ने भी जो रोजा रखा वो कितने दिन का था? 21 दिन का। दानियल की किताब जब हम 10वां बाब उसकी 3री आयत पढ़े तो वहां पर हमें दानियल का जो रोजा है वो मिलता है। इसी तरह ये तो थे इनफरादी या शख्सी रोजे। कुछ ऐसे रोजे हैं जो जमात मिलकर रखते थे, जैसे अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए, अगर किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो फिर भी रोजा रखा जाता। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से शमूएल की पहली किताब उसका 7वां बाब उसकी 4थी आयत से 7वीं आयत लिखा, तब बनी इस्राएल ने बालीम और इस्तारात को दूर किया और वक्त खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर शमूएल ने कहा कि सब इस्राएल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे हमने खुदावंद का गुनाह किया। रोजा कब रखते हैं? जब गुनाह हो जाए। बनी इस्राएल कौम जो कि इस्तराब की पूजा करना शुरू हो गए, बालीम की, दूसरे देवताओं की, बाल की पूजा करने लगे, तो फिर खुदा के बंदा शमूएल ने कहा कि खुदा के हुजूर माफी मांगने की जरूरत है। तो खुदा का बंदा मुक़द्दस शमूएल उन्हें ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? दुआ करूंगा। तुमने क्या करना है? रोजा रखना है और खुदा के हुजूर माफी मांगनी है। क्योंकि खुदा ने फरमाया कि तुम क्या करना? किसी तराशी हुई मूरत को सिजदा ना करना, तो किसी माबूद को ना सिजदा करना। इसलिए जब गुनाह सरजद हो जाए, जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर रोजा रखते हैं। तो उस वक्त उन्होंने क्या रखा? रोजा रखा। इसी तरह मुसीबत को टालने के लिए भी रोजा रखा जाता है। किसको? मुसीबत को टालने के लिए। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से यूना नबी का सीफा उसका 3रा बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, जब इंसान पर मुसीबत आ जाती है उस मुसीबत को टालने के लिए भी क्या रखा गया? रोजा रखा गया। मलकाए आसर ने बनी इस्राएल को कहा कि हमने क्या करना है? मिलकर रोजा रखना है। जब हम आसर की किताब उसका 4था बाब पढ़ते उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक, तो ये उन्होंने इस मुसीबत को टालने के लिए, बला को टालने के लिए रखा, जिसे इज्तिमाई रोजा कहते हैं। हम नए अहदनामा में देखते हैं मुक़द्दस पौलुस और इसी तरह जब बरनबास को मखसूस किया गया खिदमत के लिए, तो उस वक्त भी उन्होंने क्या किया? रोजा रखा। जब अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 2री और 3री आयत पढ़े तो लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। रोजा मखसूसियत के लिए भी रखा जाता है। जब किसी खादम को मखसूस किया जाता है, किसके लिए? खुदा के काम के लिए। सो मेरे अजीजों, इसी तरह फरीसी जो हैं, फरीसी भी रोजा रखते थे। कितने दिन? 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन। जब हम लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़े तो लिखा मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूं। यानी जो फरीसी थे हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते। इसी तरह हम एक नबिया के बारे में देखते हैं कि उसने मुसलसल जिंदगी में रोजा रखा। जब लूका की इंजील उसका
दूसरा बाब उसकी 36वीं आयत पढ़े, लिखा है और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनोएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। यानी रोजा हम कब रखते हैं? खुदा से कुर्बत को हासिल करने के लिए नबिया है। इसने अपनी जिंदगी खुदा को वक्फ कर दी और इबादत का हिस्सा जो है वो दुआ में और रोजे में गुजार दी। 84 बरस से लिखा है कि वो खुदा के हुजूर दुआ करती, खुदा की इबादत करती और रोजे रखती थी। खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं दूसरों के लिए रोजा, खुदावंद का बंदा मुकद्दस दाऊद जो है वो बयान करते हैं 35वां ज़बूर और उसकी जब हम पढ़ते हैं 13वीं आयत, लिखा है कि लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। यानी जब कोई बीमार होता है, परेशान होता है, मुसीबत में होता है, तो उस वक्त भी हम क्या रखते हैं जी? रोजा रखते हैं। इसके बाद हम खुदा के हुजूर में देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए रोजा। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत पर पढ़े, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखते हैं तुझे बदला देगा। जब रोजा रखना है तो हमने क्या करना है? हमने पोशीदगी में खुदा के साथ रफाकत को हासिल करने के लिए, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए, पाकीज़गी को हासिल करने के लिए हम रोजा रखें। लेकिन ये रोजा जो है हमने दिखावे के लिए नहीं रखना, बल्कि ये रोजा सिर्फ हमें पता हो और खुदा को पता हो। फिर लिखे है कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो तुझे रोजादार जानेगा, तुझे बदला देगा, अजर देगा। अगर हम नुमाइश करते हैं तो नुमाइश का कोई फायदा नहीं, अगर हम दिखावा करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। ये रोजा खुदा के साथ आजिज़ी के साथ ताल्लुक को कायम करने के लिए है, और रोजे का अजर जो है सिर्फ कौन दे सकता है? खुदा दे सकता है। सो मेरे अजीजों, अभी मैंने मुख्तलिफ हवाला जात आपको बताए जिनमें रोजों का जिक्र है। अंबिया ने, हम देखते हैं मुकद्दस बुजुर्ग मूसा ने एक रोजा रखा 40 दिन का, मुकद्दस एलिया ने रोजा रखा एक रोजा 40 दिन का, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज करने से पहले रोजा रखा 40 दिन का। शागिर्द रोजा रख रहे हैं मखसूसियत के लिए, ताकि खुदा के काम को करने के लिए रोजा रखा जाए। बला को टालने के लिए रोजा रखा गया, गुनाह सरजद होने पर रखा गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदा भी चाहता है कि हम क्या करें? खुदा के हुजूर रोजा रखें। जब हम जकरिया नबी की किताब उसका 7वां बाब और 5वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे लिए रोजा रखा था? खुदा चाहता है कि इंसान खुदा के लिए रोजा रखे। रोजा रखने का मकसद है, पहली बात कि हम अपनी रूहानी जिंदगी में पाकीज़गी को हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए, खुदा से रहनुमाई लेने के लिए, खुदा के साथ अपने तल्लुक को जोड़ने के लिए हम क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। इसी तरह
खादम को मखसूस करने के लिए रोजा रखा जाता है, तौबा के लिए, गुनाह से मुंह मोड़ने के लिए हम रोजा रखते हैं। जब इब्लीस के साथ हमारी जंग होती है तो हमें फतह हासिल करने के लिए रोजा रखने की जरूरत है। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम अक़दस में याकूब के खत उसके 4 बाब में पढ़े तो अपनी ख्वाहिशात, जो हमारी जिंदगी में ख्वाहिशात हैं, दुनियावी ख्वाहिशात, उनसे रहाई के लिए, उनसे किनारा हासिल करने के लिए, खुदा से आजी के साथ अपने ताल्लुक को कायम करने के लिए भी हम क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। इसी तरह खुदा के कलाम में एक और बात है, रोजा रखने का एक और मकसद भी है कि हम क्या करें? अपनी जो रोटी है, जब हम रोजा रखते हैं तो अपना खाना गरीबों को दें। लिखा है कि अब वो रोजा जो मैं चाहता हूँ, खुदा कौन सा रोजा चाहता है? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? रोजा हम इसलिए रखते हैं ताकि अपनी रोटी क्या करें? भूखों को खिलाएं और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाएं, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रुपोशी ना करें। ये रोजा है कि हम अपनी रोटी किनको दे? मस्कीनों को, भूखों को। अगर उनके पास कपड़ा नहीं, उनको कपड़ा दे। इसी तरह खुदा के कलाम अक़दस में जब हम खुदावन के कलाम अक़दस में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और 14वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। रोजा रखने का मकसद क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे, खुदा की कुर्बत को हासिल करना, सीधी राह हासिल करना। अगर गुनाह सरजद हो गया है, उस गुनाह से माफी मांगने के लिए, खुदा की हजूरी में आने के लिए रोजा रखना, बला को टालने के लिए, मुसीबत से रहाई के लिए, इब्लीस के साथ जंग के लिए रोजा रखना। इसी तरह मेरे अजीजों, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जब दुल्हा उनसे जुदा होगा तब वो रोजा रखेंगे। इसका मतलब क्या है? जब खुदा की हजूरी हमसे दूर हो जाए, जब खुदा हमारी जिंदगी में नहीं, जब हमारी जुबान से कोई ऐसा निकला हुआ लफ्ज खुदा के रूह को रंजीदा करे, खुदा को नाराज करे, उस वक्त हमने क्या रखना है? रोजा रखना है, ताकि दुल्हा किसे कहा गया? खुदावंद यीशु मसीह को। जब दुल्हा हमारी जिंदगी में नहीं, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं, जब खुदा के काम हमारी जिंदगी में नहीं, जब हमारी जिंदगी में नशा है, लानत है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ रहा, फिर हमें रोजा रखने की जरूरत है, फिर हमें खुदा के हजूर आने की जरूरत है। और जब हम रोजा रखते हैं, हमारे अंदर आजी आती है, हमारे अंदर इंकसारी आती है। हम खुदा के हजूर में आके जब ये कहते हैं कि खुदावंद आज मैं तेरे लिए रोजा रख रहा हूं, ताकि मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मैं हिदायत हासिल करना चाहता हूं, मैं रहनुमाई हासिल करना चाहता हूं, मैं तुझसे अपने लिए वो नेमतें हासिल करना चाहता हूं जो तूने पाकरू के वसीला से हमें दी है। जब मखसूसियत होती है, जब आप चाहते हैं कि खुदा आपको बढ़ाए, तरक्की दे, तो आप रोजा रखें। रोजा क्यों रखा जाता है? ताकि हम क्या करें? खुदा के साथ अपने राब्ते को, रिलेशनशिप को कायम कर सके। अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम नहीं, तो फिर हमें रोजा रखने की जरूरत है।
खुदा यीशु मसीह ने जब रोजा रखा, एक रोजा 40 दिन का, तो इब्लीस शैतान आकर आजमाता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर क्या बन जाए, रोटी बन जाए। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज हमारे लिए जिंदगी की रोटी है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया जिंदगी की रोटी मैं हूं। रोजा क्यों रखा जाता है? खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए। अगर खुदा हमारी जिंदगी में है तो सब कुछ है। मुकद्दस पौलुस रसूल जब खुदा यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, उसने जब ये जाना कि जो मेरे साथ बात कर रहा है वो कौन है, जब उसने पूछा कि तू कौन है, तो उसने खुदा ने फरमाया कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और लिखा है कि 3 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना पिया। उसने भी 3 दिन का वो क्या था, रोजा था। वो क्या था रोजा? वो माफी का रोजा था, खुदा से राब्ते का रोजा था कि खुदावन मुझसे भूल चूक हो गई, मैंने तेरे लोगों को सताया। माफी में वो गिर गया, उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, वो सदमे में था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। जब हम देखें रोजा कब रखना है, रोजे की मुद्दत खुदा के कलाम में क्यों ये जिक्र हुआ है, 40 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन का। खुदा ने हमें आजादी दी है कि हम जब तक हमारा राबता रिलेशनशिप खुदा के साथ, कुर्बत रफाकत, खुदा की रहनुमाई हमें हासिल नहीं होती, हम रोजा रख सकते हैं। चाहे हम 1 दिन का रख सकते हैं, 3 दिन का रख सकते हैं, 7 दिन का रख सकते हैं। जितनी खुदा हमें क्या बख्शता है, तौफीक बख्शता है, उतना हम रोजा रख सकते हैं। रोमियो के खत में जब हम पढ़ते हैं उसका 12वां बाब पहली आयत, बस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे ये इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अपने बदन की कुर्बानी। पुराने अहदनामा में कलीसिया क्या करते थे, अपनी जान को दुख देते थे। रोजा जो है बदन की क्या है, कुर्बानी है। तो ये बदन की कुर्बानी देने के लिए 24 घंटों में हमारे कितने घंटे बनते हैं, जिसे हम 10वां हिस्सा कहते हैं, 2 घंटे 40 मिनट। जब 2 घंटे 40 मिनट को आप ज़रब देते हैं 365 दिन के साथ और उसको फिर एक दिन में 24 घंटों में डिवाइड करते हैं तो वो तकरीबन 36 दिन बनते हैं। तो 4 दिन और इसलिए इजाफा किया गया ताकि बाज़ हम रोजा रखने और रोजा खोलने में क्या करते हैं, हम टाइम की लिमिट नहीं देखते हैं। अगर हम 6 बजे रोजा खोल रहे हैं तो रात 9 बजे रोजा रख रहे हैं, ऐसे ही है ना, यानी टाइम थोड़ा सा आगे पीछे 24 घंटे में हो जाता है। इसलिए 40 रोजे रखे जाते हैं और इन रोजे रखने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे अंदर तब्दीली आए। रोजे रखने का मकसद क्या है, हमारे अंदर तब्दीली आए। अगर हम जिस्म का रोजा सिर्फ रखते हैं उसका कोई फायदा नहीं। कि अगर हम कहते हैं जी हमने 40 के 40 रोजे रखने हैं, लेकिन अगर हमारा दुल्हा के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ, अगर खुदा के साथ हमारी रफाकत नहीं हुई, तो फिर 40 रोजे रखने का भी कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने जिस्म की कुर्बानी देते हैं तो उस कुर्बानी का फायदा ये होना चाहिए, हमारी रूहानी तरक्की होनी चाहिए। रोजा जब रखना है तो उसका मकसद ये है, इबादत करें। रोजा रखने का मकसद ये नहीं अपने सारे काम किए, दुआ भी नहीं करनी, बाइबल भी नहीं पढ़नी, अपने आप को खुदा की हजूरी में नहीं लाना, तो उस रोजे का कोई फायदा नहीं। रोजे का मकसद ये है कि हम अपना पूरा जो ध्यान है खुदा पर लगाएं। लिखा है ना,
اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے کیا کرنا ہے؟ خدا سے محبت کرنی ہے۔ سو روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، اپنا بدن خدا کے حضور میں پیش کر دیں، اپنی قربانی کر دیں، یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ سو کونسل آف نکایا نے یہ اس لیے 40 روزے جو ہے وہ تشکیل دیے تھے تاکہ ہمارے بدن کی قربانی جو ہے ہم خدا کے حضور میں پیش کر سکیں، اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اگر زندگی میں مصیبت ہے روزے رکھیں، دوسروں کے لیے بھی روزے، جیسے مقدس داؤد روزے رکھتے تھے ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روزہ۔ اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں، پھر بھی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو، اکثر لوگ کہتے ہیں، جیسے مجھے ایک دن تھوڑے دن پہلے سوال ہوا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ توے کی پکی ہوئی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا جی ہم توے کی بھی کھاتے ہیں، ہم تندور کی بھی کھاتے ہیں، ہم جو ہے پلانٹ کی روٹی بھی پکی ہوئی کھا لیتے ہیں، تبھی مل جائے اس کی بھی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو روزہ ہے روح کا ہے۔ ہم جسمانی چیزوں کو کھانے پینے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم ریاضت کرتے ہیں خدا کے لیے، ہم ریاضت کرتے ہیں خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں خدا سے برکات کو حاصل کرنے کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں خدا کی حضوری کو حاصل کرنے کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں خدا کے قریب جانے کے لیے، پاکیزگی کے لیے، ہم کھاتے پیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ خدا کا بندہ مقدس داؤد، وہ 7 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا جب اس کا بیٹا بیمار تھا۔ وہ روزے میں رہا، وہ خدا کی حضوری میں دعا کرتا رہا کہ اس کا بیٹا بچ جائے، کیونکہ اس پر کیا تھی؟ بیماری تھی۔ لیکن جب اس کا بیٹا جو ہے فوت ہو گیا، خدا میں سو گیا، تو اس نے کہا کہ میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ لیکن جب اس کا بیٹا نہیں بچا تو وہ اٹھا اور اس نے کھایا پیا۔ یہ ایک مقصد تھا کہ ہم نے خدا کی مرضی کو قبول کرنا ہے، اس نے خدا کی مرضی کو قبول کیا۔ میرے عزیزوں، روزہ جو ہے کس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے؟ خدا کے لیے، پاکیزگی کے لیے، خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، مخصوصیت کے لیے، بلا کو مصیبت کو ٹالنے کے لیے، خداوند کے حضور میں جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس کی معافی کے لیے، نشے پر، بری عادات پر جو ہے قابو پانے کے لیے، اور اگر خدا ہم سے ناراض ہو گیا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ خدا ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ کس سے؟ تو روزہ ہم نے رکھنا ہے تاکہ گناہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے۔ روزہ ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہم عیب جوئی کرنا چھوڑ دیں۔ روزہ ہم نے رکھنا ہے تاکہ خدا ہماری زندگی میں رہنمائی کر سکے۔